Hello students, how are you all? Students, in previous video we have discussed about the different type of data series like individual series and frequency series. We have seen that frequency series can be divided into two different types like frequency array and frequency distribution. So in this video we will discuss these type of data series in detail. So let us start with individual series. So individual series is a type of data series in which each and every items are listed singly. So here is a definition of individual series. Individual series is a type of data series in which each and every items are listed singly. And for this we will take 10 students of class 11th who have got different marks in statistics. Say roll numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. There are 10 students and their marks 10, 20, 30, 40, 50, 80, 70, 90, 60, 15. So these are the different marks obtained by different students of class 11th in statistics. So this is an example of individual data series, and this individual data series can be represented in two ways. The first way of representing the individual data series is by following the serial numbers. And the second way of representing the individual data series is by following the ascending or descending order. Ascending or order. Means the same data can be arranged by following the serial numbers like roll numbers and by arranging the data in ascending or descending order. Means the same data can be sorted according to ascending or descending order. The second type of data series is frequency series, and frequency series is of two types: discrete or frequency array or frequency distribution. So first of all, we will try to understand the discrete or frequency array. So discrete or frequency array is a type of data series in which items are represented in a way that exact measurement of each and every item can be clearly shown. So let us see the definition of discrete or frequency array. So discrete or frequency array is a type of data series in which items are represented in a way that exact measurement of each and every item can be clearly shown. In simple terms, discrete or frequency array is a type of data series in which
we represent the data with the help of frequencies of each and every item. So to understand this, let us take an example of students of class 11th who have got few marks in statistics. So the example will be like, these are the marks obtained by students and these are the number of students who have secured these numbers in statistics. So this is the frequency of students and this is the marks obtained by these students. So frequency एरिया में हम हर एक आइटम का फ्रीक्वेंसी भी मेंशन करते हैं. अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी समझ लेना जरूरी है. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी आइटम is the number of times that particular item repeat itself in a data series. So यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं जो कि 10 मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि 20 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 2 स्टूडेंट्स 30 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 7 स्टूडेंट्स 40 और 6 स्टूडेंट्स 50 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं. So this is the frequency and this is the items present in the data series. Now we will try to understand the frequency distribution type of data series. So frequency distribution is a type of data series in which the exact measurement of items cannot be clearly shown and the items assumes a range of values and these items is placed within the range or limits. एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं. Frequency distribution is a type of data series in which exact measurement of items cannot be clearly shown and it assumes a range of values and these values are placed within the range or limits. Say for example, this is the range of marks obtained by the students in statistics, means from 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. And there will be number of students who will be falling in these particular range. Fine. So, number of students. So, in this particular range, there could be 5 students in this, 6 in this, 3 in this range, 2 in this range, 4. So so the number of students will be the class frequency and these range of values will be termed as class intervals. यानी कि 10 to 15 एक class interval है, 15 to 20, 20 to 25 and so on will be the class intervals and the number of students who are falling in these range of values will be the class frequencies. और इस क्लास इंटरवल में जो ये स्मॉलर वैल्यू होती है इसको हम लोअर क्लास लिमिट कहते हैं एंड जो हायर वैल्यू होती है इसको हम अपर क्लास लिमिट कहते हैं.
और अगर हम अपर क्लास लिमिट से लोअर क्लास लिमिट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल बोलेंगे या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास बोलेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा? Magnitude of class interval will be upper limit minus lower limit. और अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू हमें मिलेगी उसे हम मिड वैल्यू बोलेंगे, किसका? क्लास इंटरवल का। तो मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल विल बी mid value will be like lower limit, upper limit plus lower limit upon 2। तो जो वैल्यू हमें मिलेगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करने के बाद उसे हम मिड वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे मिड वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 प्लस 10 by 2 is equal to 25 by 2, 12.5. So here 12.5 will be the mid value of this particular class interval, and if I ask to find out the magnitude of the class interval of each and every classes, so it will be like 15 minus 10 is equal to 5. So 5 will be the magnitude of this class interval, and if we subtract 15 from 20, it will be 5, means 5 will be the class interval. So the class size of each and every class interval is 5. So let us see what are the different types of frequency distribution series. So frequency distribution series is further divided into exclusive series, inclusive series, open-end series, cumulative series and mid-value series. अब एक एक करके हम इन सारे टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। So the exclusive series is that series in which every class interval excludes the items corresponding to the upper class limit. So let us try to understand this with the help of an example. So I have taken the example of marks of different students, and the marks has been classified into different class intervals with class size 5. So if you will see, you can see that the upper class limit of first class interval is the lower limit of the second class interval, and the upper class interval of second class interval is the lower limit of the third class interval, and so on. अब बात आती है कि हम आइटम्स को इन डिफरेंट क्लास इंटरवल्स में कैसे प्लेस करेंगे। तो कुछ एक आइटम्स को हम देखते हैं। सपोज स्टूडेंट्स ने कुछ इस तरीके से मार्क्स गेन किया 10, 11, 13, 14, 15, 23, 16, 17, 25, 21, 22, 26, 31, 32, 34, 29 and so on. तो हम इन आइटम्स को इन क्लास इंटरवल्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास इंटरवल में कौन कौन से आइटम्स आएंगे इसको हम देखते हैं। तो ये क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है 15। तो हम देखेंगे कि इसमें 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और भी कोई नंबर है? नहीं, और सारे नंबर्स बड़े हैं। एक यहाँ पे 15 है जो कि इस क्लास इंटरवल के अपर लिमिट के बराबर है।
तो क्या हम इस 15 को इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में इंक्लूड करेंगे? नहीं, हम इस आइटम को नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड करेंगे। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में हम डेटा को कुछ इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं डिफरेंट क्लास इंटरवल्स में। आगे के आइटम्स को भी हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 15 टू 20। तो इसमें इस क्लास इंटरवल में कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं? तो हम देखते हैं, एक तो 15 आ जाएगा, दूसरा 16, 17, बस 15, 16 एंड 17। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 20 टू 25 है। तो अब देखते हैं कि इस क्लास इंटरवल में कौन कौन से आइटम्स आ जाएंगे। 20 टू 25, तो इसमें 21 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 22, दैट्स इट। क्योंकि 25 जो कि इस क्लास इंटरवल के अपर लिमिट के बराबर है, इसको हम नेक्स्ट क्लास इंटरवल में प्लेस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारा क्या है? 25 टू 30। तो इसमें 25 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, बस। इसके बाद नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारा क्या है? 30 टू 35। इसमें 31, 32, 34, सॉरी ये 29 जो है ये 25 टू 30 के क्लास इंटरवल में आ जाएगा। ये मैं मिस कर गया था। तो लास्ट वाले क्लास इंटरवल में 34 तक हम आइटम्स को प्लेस करेंगे। तो हमने ये देखा कि हर एक क्लास इंटरवल में जब आइटम्स में से कोई आइटम अपर क्लास लिमिट के बराबर आ जाता है, तो उस आइटम को हम नेक्स्ट क्लास इंटरवल में प्लेस कर देते हैं। ये है एक्सक्लूसिव सीरीज की खासियत। So students, let us see what is inclusive series. Inclusive series is that series which includes all the items up to its upper limit. यानी कि अपने अपर लिमिट के बराबर तक के आइटम्स को इस सीरीज में हम प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ आइटम्स ले रखे हैं और इन आइटम्स को हमने डिफरेंट क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर रखा है। तो अब हम देखते हैं कि हर एक क्लास इंटरवल में इन आइटम्स को हम किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। वन मोर थिंग टू नोटिस हियर, हर एक क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो अपने नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर नहीं है। लेकिन ऐसा एक्सक्लूसिव सीरीज में हमने देखा था। उसमें हमने क्या देखा था कि पहले क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो दूसरे क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हर एक आइटम को प्लेस किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें पहले क्लास इंटरवल की, जो कि 10 टू 14 है, तो इसमें हम डेटा कहां तक इंक्लूड कर सकते हैं? मीन्स जो भी आइटम 14 के इक्वल होगा वहां तक के डेटा को हम वहां तक के आइटम्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 12, 14, 13। इसके बाद और कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जिसको कि हम 10 टू 14 क्लास इंटरवल में इंक्लूड कर सके। मीन्स हमने कितने आइटम्स को यहाँ पे इंक्लूड किया? 1, 2, 3, 4, फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है वो है 15 टू 19, यानी कि 15 से 19 तक के आइटम्स को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो लेट अस सी 15, 16, 18, अगेन 15 एंड 19। कोई और इसमें आइटम जो कि इस क्लास इंटरवल में आ जाए? नहीं, और कोई आइटम इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि इसमें प्लेस किया जा सके। मीन्स हमने कितने आइटम्स को इसमें प्लेस किया? 1, 2, 3, 4, 5। मीन्स द फ्रीक्वेंसी विल बी 5। अगेन इफ यू विल कंसिडर द क्लास इंटरवल 20 टू 24, तो इसमें हम उन आइटम्स को प्लेस करेंगे जो कि 20 से 24 तक आती हो। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? 20, 21, 23, 24, 22 भी आ जाएगा, फिर 22, फिर 24, फिर 20। अब क्या बच जाएगा? 25, 26, 27। ये सब बाकी आइटम्स इसमें प्लेस नहीं किए जा सकते क्योंकि 24 से सब बड़े हैं। तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है वो है 25 टू 29। तो 25 टू 29 में क्या क्या आ जाएगा? 25, 26, 27, 29 एंड 29। मीन्स कितने आइटम्स को प्लेस किया हमने? 1, 2, 3, 4, 5। और इसके पहले वाले क्लास इंटरवल में हमने
20 to 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम्स को प्लेस किया, मतलब कि फ्रीक्वेंसी 8 हो गई और इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 30 to 34 है, जिसमें कि 31, 31, 34, 33 ये 4 आइटम्स को हम प्लेस कर सकते हैं और ऐसे जो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। और सो दिस इज अबाउट इंक्लूसिव सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Students, now we will try to understand how inclusive series can be converted into exclusive series, यानी कि इंक्लूसिव सीरीज को किस तरीके से एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस एग्जांपल को हम लेके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है, इसमें क्लास इंटरवल्स आप देखिए 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 एंड 30 to 34। यहाँ पे जो पहले क्लास इंटरवल की अपर क्लास लिमिट है वो दूसरे क्लास इंटरवल के लोअर क्लास लिमिट के बराबर नहीं है, और यही सारी कंडीशन सारे के सारे क्लास इंटरवल्स में। तो इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, मतलब कि पहले क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो दूसरे क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इंक्लूसिव सीरीज के लोअर लिमिट से हमें 0.5 को माइनस करना होगा और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना होगा, और ये काम हमें हर एक क्लास इंटरवल में करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो पहला क्लास इंटरवल है 10 to 14, तो एक्सक्लूसिव सीरीज बनाते समय हमने क्या किया है, 10 से 0.5 माइनस किया है और इसके अपर लिमिट यानी 14 में 0.5 प्लस कर दिया है। तो क्या आ गया 9.5 एंड 14.5। नेक्स्ट क्लास इंटरवल में हमने क्या किया है, जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है वो है 15 to 19, इसमें हमने क्या किया 15 से 0.5 माइनस किया है और 19 में 0.5 प्लस कर दिया है। तो क्या आ गया 14.5 और 19.5। तो यहां आप देखेंगे कि पहले क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव सीरीज में जो पहला क्लास इंटरवल बन के आया है उसका जो अपर लिमिट है वो 14.5 है और दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 14.5 है, यानी कि इसका अपर लिमिट किसके बराबर हो गया, इसके लोअर लिमिट के बराबर हो गया। यही काम हमने आगे के क्लास इंटरवल्स में भी किया है। यहां पे हमने 15 से 0.5 माइनस किया है और 19 में 0.5 प्लस किया है, तो 14.5 और 19.5 आया है। नेक्स्ट क्लास इंटरवल में हमने 20 से 0.5 माइनस किया है और इसके अपर लिमिट में 24 में 0.5 प्लस किया है। यहां पे भी वही कंडीशन आ गई। अब देखिएगा हर एक क्लास इंटरवल जो कि एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हुआ है उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट के बराबर हो गया है। तो इस तरीके से हम इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस distribution series we will try to understand in our next video. Till then, have a good day.